ہاں ہاں، سمجھدار تو وہ ہے، سمجھدار ایسے بنو کہ اگر کوئی تمہیں پتھر مارے اس سے اپنے گھر کا بھراؤ کر لو، کوئی اینٹ مارے اپنا گھر بنا لو، ہاں کوئی آپ کو کڑوی کسیلی سنائے، آپ کو چوٹ پہنچائے، آپ کو تکلیف دے، اس سے سبق سیکھو کہ یہ جو مجھے بتا رہا ہے ایسی باتیں کوئی اور نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ ہر انسان حسد نہیں کرے گا، ہر انسان مجھے برداشت کرنا نہیں سکھانے کا ہے، ہر انسان مجھے دکھ درد غم یہ ڈپریشن یہ برے حالات ان سے لڑنا نہیں سکھانے کا، یہی سکھائے گا۔ کیوں سکھائے گا؟ یہ ہر وہ الفاظ بولے گا، ہر وہ بات کہے گا، ہر وہ مجھے غم پہنچانے کی سوچے گا، ہاں جو میرے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایک پیڑ ہوتا ہے، پیڑ، ٹھیک ہے، سمجھدار انسان وہ ہے جو موقع کا فائدہ اٹھائے، جو ہر چیز سے اپنا فائدہ نکالے۔ کس نے آپ کو اینٹ ماری ہے، گھر کے کام میں لے لو، کسی نے آپ پر تانے کشی کری ہے، اس سے ایک سبق سیکھو، سبق۔ یہ حسد کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ہم سے جلنے والے کلسنے والے، ان سے ڈرنا نہیں ہے اور خوش ہو جاؤ کہ آپ کو وہ لوگ مل گئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کامیابی کی طرف دوڑیں گے، جن کی وجہ سے آپ اسٹرانگ، جن کی وجہ سے آپ کا یہ ذہن یہ دماغ یہ عقل اچھا کام کرے گی، جن کی وجہ سے اب تمہاری سوچ قوی ہوگی، جن کی وجہ سے اب تم اپنے کاموں میں اور زیادہ اسٹرگل کرو گے، اور زیادہ مضبوطی سے کرو گے۔ یہ وہی لوگ آپ کو مل گئے، یہ توڑنا چاہیں گے، تم ان سے بستے بستے مضبوط ہو جاؤ گے۔ یہ تمہیں ستائیں گے، تم عقل کا استعمال کر کے بچنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ تمہیں گڈھے میں پھینکیں گے، تم چھلانگ مارنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ تمہیں پانی میں دھکیلیں گے، تم تیرنا سیکھ جاؤ گے۔ بس تمہیں سیکھنا ہے، بس تمہیں ان سے علم حاصل کرنا ہے، تمہیں ان کی باتوں سے ایک بڑا سبق سیکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات میں۔ ایک پیڑ ہوتا ہے، ایک پیڑ تم اپنے گھر کے اندر لگاؤ اور ایک پیڑ تم باہر لگاؤ۔ اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں ہمیں غفلت میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیموٹیویٹ، اپنے آپ کو اداس کرنے کے لیے ہمارے پاس بہانے ہزار ہیں۔ اگر ہم ہی نہ چاہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر پائیں گے، ہر چیز کریں گے۔ سنو تمہارے حسد کرنے والے جو ہیں، تم سے نفرت کرنے والے، ہاں جو تمہیں برا سمجھتے ہیں، تم سے محبت سے پیش نہیں آتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے ان سے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ کرنے والے ہیں، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ اب اس بات کے بارے میں غور تو تھوڑا غور، ایک پیڑ آپ اپنے گھر کے اندر لگاؤ، ایک پیڑ آپ اپنے گھر کے باہر لگاؤ، یہ جب دونوں بڑے ہو جائیں گے تو جیسا باہر والا آپ کا پیڑ ہوگا نا، وہ اندر والا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس نے تکلیفوں کو نہیں دیکھا، اس نے اپنا سنگھرش، ہارڈ ورک، اسٹرگل، تکلیف، مصیبت، دکھ درد، برے حال اس نے نہیں دیکھے۔ جو اندر ہے اس سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں، اس کو پانی بھی ڈالتے ہیں، اس کی دیکھا بھالی بھی کرتے ہیں، اسے اچھی بری چیزوں سے بھی بچاتے ہیں، تو اس میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو باہر والے میں ہوگی۔ سمجھتے ہو؟ اس کے ہر پتے میں، ہر ٹہنی میں، اس کی جڑ میں، اس کے اندر وہ قوت نہیں ہوگی جو باہر والے میں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو باہر والا ہے اس نے دھوپ سے اپنا آپ کو مضبوط کیا، اس پر دھوپ کی تپش پڑی، اس نے دھوپ کو برداشت کرنا سیکھا، اس پر برے حال آئے، بری سچویشن آئی، اس نے آندھی طوفان دیکھی، اس نے بارشیں دیکھی، اس نے ایسے وقت دیکھے جس میں وہ مضبوط ہوا، اس کی ٹہنیاں مضبوط ہوئیں، اس کی جڑوں نے اس وقت سے جو وہ وقت ہارڈ گزرا تھا، اس پہ آندھی طوفان میں آندھیاں تگڑی چلی، اس نے اپنے آپ کو مضبوطی سے روکے رکھا، بارشیں برسی، اس نے اپنے آپ کو مضبوطی سے روکے رکھا، اس کے ساتھ غلط برتاؤ کیا گیا، اس پہ ایسی چیزیں استعمال ہوئیں جو اس کے ساتھ نہیں ہونی تھیں، اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو ایک وقت آیا، وہ کیا ہوا، ایک پودا بہت بڑا نیم بن گیا، بہت بڑا درخت، پیڑ، اس کی جڑیں دور دور تک مضبوط ہوگی۔ اب اس کی جو جراثیم سی ٹہنیاں تھیں وہ بہت بڑے، کیا بولتے ہیں ان کو، شاخ جو لمبی پھیل جاتی ہے، گدے بہت بڑے بڑے، لکڑ مضبوط بن گئے، جو اندر کا کمزور پیڑ نہیں بنے گا۔ اس نے مصیبت سے نہیں لڑنا سیکھا، اس نے برے حالاتوں سے نہیں لڑنا سیکھا، اس نے آندھی طوفان، بارش، دھوپ، اس نے برے حال نہیں دیکھے۔ اب یہ باہر والا جو ہے، اس نے برے حالاتوں کو دیکھا ہے، اس نے ان مصیبتوں کا سامنا کیا ہے جس نے اس کو مضبوط بنا دیا ہے۔ اب اس کو انسان آسانی سے اکھاڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، سمجھتے ہو؟ اس نے اپنی طاقت بنا لی ہے۔ ایسے یہ ہمارے باہر والے جو ہیں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں، جو ہم سے جلتے ہیں، جو ہم سے خوش نہیں رہتے ہیں، ایسے یہ ہیں، یہ ہمیں مضبوط ہونا سکھائیں گے، یہ ہمیں
कामयाबी की तरफ दौड़वाएंगे, या हमारे दिमाग को, हमारी अक्लें काम नहीं करती, बेवकूफ़ बनकर बैठे रहते हैं, या हमारी अक्लों को हमें इस्तेमाल करना सिखाएंगे। हम सोचेंगे इनसे कैसे बचा जाए, हम सोचेंगे अब इस काम को किस तरह किया जाए, हम सोचेंगे ये मेरे काम में टांग अड़ाएगा, मुझे किस तरह इस टांग को हटाना है, इस अकल का इस्तेमाल करना ये सिखाएंगे। समझते हो? ये तकलीफ़ों में घेरेंगे, हम सीखेंगे, ये दिल तोड़ेंगे, दिलों को मजबूत करना सीखेंगे कि ये हमारे दिलों को इतना तोड़ देंगे, हसद करने वाले, हमसे जलने किलसने वाले हमारे दिलों को इतना तोड़ देंगे, इतना तोड़ देंगे कि हम बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, हम अपना आप से ही रूठे रूठे से हो जाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होगी, जी खाने के लिए नहीं लेगा, घर में हमें सुकून नहीं मिलेगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन ये लोग हमें इतना मजबूत बना देंगे, जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें हमें जो ये गम आएंगे ना, फला गम, ये गम, वो गम, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, ये बहुत हल्के मालूम होंगे। हमने बड़े बड़े गमों को देखा है, ये कोई गम नहीं है, ये कहीं से गम है, तो इनसे डरना नहीं है। ये हमें मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कवि बनाएंगे, या हमें मुसीबतों से लड़ना सिखाएंगे। बस हमें अकल से काम लेना है। ये हमें किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह हम पर अपनी चाल चल रहे हैं, हमें उनसे फ़ायदा उठाना है। अपने दिल में किसी को बुरा नहीं मानना है, किसी के बुरे में नहीं रहना है। तुम बुरे में न रहो, बस बुरा करोगे बुरा भरोगे, अच्छे बनोगे, अच्छों के साथ तो अल्लाह है। जो अच्छा करेगा वो अच्छा इंसाफ देखेगा, अच्छा बदला देखेगा। लोग हसद करते हैं, जलन रखते हैं, तुम्हें डरना नहीं है, अक्लमंदी से काम लेना है, अक्लमंदी से। और होशियार वही है जो इंसान दुख दर्द में भी मुस्कुराना ना छोड़े, गम में भी हार न माने। अरे जिंदगी है, इम्तिहान की जगह है, कोशिश करता रहूँगा तब भी ज़िंदगी गुजरती रहेगी, हार कर बैठ जाऊँगा तब भी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर मैं गम में होऊंगा, दुख दर्द में होऊंगा, तकलीफ़ में होऊंगा, अगर मैं एक परेशानी को बड़ी बनाकर बैठ जाऊँगा तो गम में कौन होगा? मैं ही तो होऊंगा, मेरा ही तो वक्त ज़ाया हो रहा है। और इसी वक्त को अगर मैं खुशी के साथ गुजारूँ, अगर मैं हंस कर गुजारूँ, अगर मैं बातों को इग्नोर कर गुजारूँ, तो वक्त फिर भी गुजरेगा और सुकून के साथ गुजरेगा, बेहतर गुजरेगा फिर। और अगर हम खुश होंगे तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है। इस दिल को उदास करना ना सीखो, इस दिल को तोड़ना ना सीखो, अपने आप को डिमोटिवेट करना ना सीखो। लोग उदास करते हैं, ये तुम्हारे साथ ही नहीं है, दुनिया के साथ है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं होता है, उसकी कामयाबी को देखकर, उसकी कामयाबी को देखकर कोई खुश नहीं होता है। मेरे भाई, अपनों पर यकीन रख कि तू सब कुछ कर सकता है। हाँ, जब अच्छे बनोगे, जब नेगेटिव सोच तुम्हारी नहीं होगी, बुरा नहीं सोचोगे, किसी के बुरे में नहीं होगे, पॉजिटिव ख्यालात के होगे, अच्छा सोचोगे, अच्छी सोच तुम्हारी होगी, तो इंशाल्लाह कामयाबी बहुत जल्द देखोगे। बुरे हालातों को ख़त्म होते बहुत जल्द देखोगे। इनसे डरो मत, बुरे हालातों से, बुरी सिचुएशनों से, बुरे गमों से, बुरे वक्तों से। दुनिया है, आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है। अगर तुम पे कभी गम आने लगे, कभी दिल टूटने लगे, कभी उदास हो जाओ, कभी डिमोटिवेट हो जाओ, कभी कुछ करने का मन न हो, लोगों से जब तुम्हारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, हाँ, जब तुम्हें कहीं से कोई रास्ता नजर ना आए, तो तुम फिर थोड़ा सोचो इस दुनिया में कितनी सारी मखलूक हैं। चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, रेंगने वाले, उड़ने वाले, फाड़ने वाले, धाड़ने वाले, चिंगाड़ने वाले, हिनहिनाने वाले, गुर्राने वाले, भौंकने वाले, काटने वाले, डसने वाले, ये ज़मीनों पर रेंगने वाले, पानी में तैरने वाले, बिलों में रहने वाले, कितनी सारी मखलूक है, कितनी सारी। समंदर के अंदर बिलियनों ट्रिलियनों मखलूक है, कितनी किस्म की है। इनके पेट कैसे भर रहे हैं, इनको गुजारे कैसे हो रहा है, इनके वक्त कैसे गुजर रहे हैं, कौन है जो इनको देखभाली कर रहा है, इनको खिला रहा है, इनको जिया रहा है, इनको मौत भी देता है, इन पर उनका कंट्रोल है। कौन है ये? गौर करो। अल्लाह हमारा अल्लाह। उस अल्लाह जब इतनी सारी मखलूक को खिला सकता है, क्या मुझे नहीं खिला सकता है? वो अल्लाह इतनी सारी मखलूक को अपने काबू में रख सकता है, वो मेरे मसले सॉल्व नहीं कर सकता है? जब तुम सबसे उदास हो जाओ, दिल टूट जाए, कहीं रास्ता नजर ना आए, तो अपने रब को याद करो, अपने अल्लाह से बात करो, अपने अल्लाह को अपनी रुदात सुनाओ, अपने अल्लाह से अपना यकीन बनाओ। अल्लाह की कसम, अंधेरों में भी रास्ते मिलेंगे। अल्लाह को याद तो करो, हमेशा याद रखना, अल्लाह को याद करोगे तो गमों में भी सुकून होगा, तकलीफों में भी राहत होगी। हाँ,
आप अपने आप में, मैं अपने आप में डिमोटिवेट फील करूँगा, डिमोटिवेट फील करेंगे, उदासी फील करेंगे, नाकामी महसूस करेंगे। लेकिन वो नाकामी, कोई नाकामी नहीं होगी जब हमसे अल्लाह राज़ी होगा, जब अल्लाह हमारा होगा, जब अल्लाह हमारा हमसे राज़ी होगा, कोई उदासी नहीं होगी। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ो, दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ो, आखिरत की फ़िक्र करो, लोगों से न डरो, किसी से न डरो। अगर डरना ही है तो अल्लाह से डरो, अगर डरना ही है तो बुरा अमालों से डरो, अगर डरना ही है तो किसी को धोखा देने से डरो, किसी से झूठ बोलने से डरो, किसी को नाहक सताने से डरो, किसी के काम बिगाड़ने से डरो, किसी के दिलों को तोड़ने से डरो, किसी को नाकाम कराने से डरो, किसी के साथ गलत करने से डरो, अपने अमाल नामे को ख़राब करने से डरो, उस आखिरत के दिन में नाकाम होने से डरो, उस जन्नत को खोने से डरो, कब्र के अजाब से डरो, अल्लाह की नाराज़गी से डरो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा करने से डरो, अपने आप को नाकाम होने से डरो, नाकाम होने से डरो, बाकी नहीं डरो किसी से भी। डरने का हक सिर्फ अल्लाह से है, दुनिया से नहीं डरो, लोगों से नहीं डरो, वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं इस अकल का इस्तेमाल करो, उससे भी तुम्हें फ़ायदा होगा। होशियार तो वही जो अकल से काम ले, समझ से काम ले, होशियार तो वही है। मेरे भाइयों, ये मौके बार बार नहीं आएंगे, अगर अकल से काम लोगे तो बेड़े पार हो जाएंगे, कामयाब हो जाओगे। ये जो तुमसे नफरत कर रहे हैं, तुम्हें उदास करते हैं, तुम्हारे दिलों को तोड़ते हैं, इनसे उदास ना हो। यही लोग जो तुम्हें कामयाब कराएंगे, यही लोग हैं जो तुम्हें मजबूत बनाएंगे, यही लोग हैं जो तुम्हें गमों को बर्दाश्त करना सिखाएंगे। इनसे उदास ना हो, हाँ, इनसे उदास नहीं होना है। यही तो लोग हैं जो तुम्हें कामयाब कराएंगे। मेरे भाइयों, सोचो तो सही, किस धोखे में क्या करना चाहते हैं? ये हमारी बुराई करते हैं, हम इनकी बुराई करें, या हमारी चुगली करते हैं, हम उनकी चुगली करें, या हमारे बुरे में रहते हैं, हम उनके बुरे में रहें। तो इसमें तो दोनों का नुकसान है, दोनों का नुकसान है। हम समझा सकते हैं, नहीं मानता उसके हाल पे छोड़ दो। हासिद इंसान, हसद करने वाला, दूसरों की जलन रखने वाला, दूसरों से किलसने वाला, दूसरों का हसद अपने अंदर पैदा करने वाला, वो वक्त सेकंड लम्हा जलता रहता है, तड़पता रहता है, उसके अंदर आग भड़कती रहती है एक जलन की। तुम क्यों परेशान हो? तो तुम मत परेशान हो, तुम मत सोचो इन बातों के बारे में, तुम मत सोचो। लोग तुम्हारे साथ गलत करें, तुम भलाई का मामला करो, उसके भले में रहो, तुम बुरे में ना रहो। बुरा करने वाले के साथ बुराई होना है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने एक दिन तय किया है, बुरा करने वाला कभी कामयाबी नहीं देखेगा, गलत करने वाला कभी कामयाबी नहीं देखेगा, कभी सुकून नहीं देखेगा। भला कोई किसी के घर को उजाड़ कर अपने घर को आबाद कर सकता है? किसी के दिल को तोड़कर अपना दिल खुश रख सकता है, आबाद रख सकता है? नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। तुम किसी के बुरे में ना रहो। ये जो लोग, तुम इनसे भी मोहब्बत करो। तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं, इनसे भी मोहब्बत करो। ये लोग तुम्हें कामयाबी की राह दिखाएंगे, कामयाबी की तरफ दौड़ाएंगे, तुम्हें मजबूत बनाएंगे। नफरत ना करो, नफरत करोगे तो अपना ही कुछ खोओगे, अपना आप को ही गमों में घेरोगे। नफरत ना करो, इनके बुरे ना बनो। ये लोग तुम्हें गड्ढा खोदेंगे गिराने के लिए, तुम्हें छलांग मारना सिखा देंगे, तुम अकल से इस्तेमाल करो तो। हाँ, अकल से अपना आप को चलाओ तो। ये लोग तुम्हें गड्ढा खोदेंगे गिराने के लिए, तुम अकल से काम लोगे, तुम छलांग मारना सीख जाओगे, उछलना सीख जाओगे, जंप करने सीख जाओगे। किसने गड्ढा खोदा? अपने तो नहीं खोदेंगे, बताओ। भाई तो नहीं खोदेगा, बहन तो नहीं खोदेगी, माँ बाप तो नहीं खोदेंगे गिराने के लिए। गैर मजबूत करेंगे। जब इंसान घर से बाहर निकलता है, जब दुनिया की शेयर करता है, जब वो दुनिया के दुख दर्दों से लड़ता है, बुरे हालातों से गुजरता है, जब वो सबको देखता है, सबके रवैये, तब जाकर उसके अंदर एक समझ पैदा होते, तब जाकर वो अपने आप में एक इंसान महसूस करता है कि हाँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मुझे किस तरह जिंदगी गुजारनी है इन लोगों ने बता दिया है, मुझे किस तरह बनना है इन लोगों ने बता दिया है, मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी है समझ गया हूँ मैं दुनिया को देखकर। जब तुम बाहर वालों से मिलोगे, उनके हालों को देखोगे, उनकी बातों को सुनोगे, उनके दुख दर्दों को देखोगे, हाँ, वो तुम्हें मुसीबतों में घेरेंगे, तुम इनसे मुसीबतों से लड़ोगे, तब तुम सीखोगे कि बुरे हालों से कैसे लड़ा जाता है, तब तुम सीखोगे कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाता है। घर में नहीं आएगा सीखना। इन लोगों से नफरत नहीं करनी है, इन लोगों को बुरा नहीं कहना है। ये लोग डुबाने के लिए धक्का मारेंगे और तुम दिमाग का इस्तेमाल करोगे, तुम
इस चीज को काम में लोगे जो इन्होंने तुम्हारे साथ किया, तुम तैरना सीख जाओगे। धक्का मारा डुबाने के लिए, तुम तैरना सीख गए। गिराने के लिए गड्ढा को, तुम कूदना सीख गए। इन्होंने तुम्हें मुसीबतों में घेरा, हाय हाय, तुम्हें परेशानी से लड़ना सिखा दिया। कौन सिखाएगा ये? बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े उस्ताद वो चीजें नहीं सिखाते हैं जो दुनिया सिखाती है। समझते हो? जो एक जगह बैठ कर नहीं सीखते वो दुनिया में घूम कर सीखते हैं। याद रखना इस चीज के बारे में। जब दुनिया फिरोगे, जब लोगों से मिलोगे, जब लोगों के रवैयों को अपने साथ होते देखोगे, तब तुम्हें जीना आएगा। अगर कोई तुम्हारा बुरा चाहने वाला नहीं है, अगर कोई तुमसे हसद करने वाला नहीं है, अगर कोई तुम्हें बुरा नहीं कहता है, तो याद रखना, अगर कोई तुम्हारा बुरा चाहने वाला नहीं है, अगर कोई तुमसे हसद करने वाला नहीं है, सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो मेरे दोस्त ये खुशी की बात नहीं है, फख्र की बात नहीं है। फिर तुमसे बड़ा दोगला कोई नहीं है, तुमसे बुरा इंसान कोई नहीं है। अगर सब तुम्हारे दोस्त हैं, सब तुम्हारे चाहने वाले हैं, फिर तुमसे बुरा कोई नहीं है। दुश्मन उसके होते हैं जो हक पर होता है। हाँ, बुरा उसको कहा जाता है जो सच्चा होता है, अच्छा होता है। चापलूसों के, दोगलों के, हाँ तलवे चाटने वालों के, दूसरे गुलामी करने वालों के, इंगे की इंग लगाने वालों के दुश्मन नहीं होते। हाँ, जब अपने आप में एक दोगलापना होगा तो उसका दुश्मन क्या होंगे? वो उसके लगाएगा, उसके लगाएगा। हक और सच पर रहो। लोग जलते हैं, जलन दो। ये निशानी तुम्हारे अच्छे होने की। जो तुम्हें बुरा समझता है, जो तुम्हारी बुराई करता है, जो तुमसे हसद करता है, तो सुनो, वो तुमसे इसलिए जलता है, वो तुम अपने आप से अफजल समझता है, अपने आप से ऊंचा समझता है, अपने आप से अच्छा समझता है, इसलिए तुमसे जलता है। वरना मुझे बताओ, अपने से कम दर्जे से कौन जलता है? आप पढ़ाई में एक्सपर्ट हैं, आप अच्छा जानते हैं पढ़ाई के बारे में, इल्म आपको ज्यादा है, तो आप उससे कभी जलेंगे, कभी हसद करेंगे जो कुछ भी नहीं जानता है, जो बेवकूफ़ है, जो आपसे कम दर्जे का है, आपसे नीचा है, आप उससे हसद करेंगे? नहीं करेंगे। उससे हसद पैदा हो सकता है जो आपसे ज़्यादा इल्म वाला हो, जो आपसे ऊंची पोजीशन का हो, जो आपसे अच्छा बेहतर हो, उससे हसद होगा। तो लोग आपसे हसद क्यों करते हैं? वो आपको बेहतर समझते हैं। उदास ना हो मेरे भाई, इस अकल का इस्तेमाल करो, अकल का इस्तेमाल करो। अगर कुछ समझ रखते हो तो याद रखना, अगर कुछ समझ रखते हो तो इस अकल का इस्तेमाल करो। डरना नहीं है बुरे हालों से, बुरे वक्तों से, दुनियादारों से, इन लोगों से, हासिदों से डरना नहीं है। इस अकल का इस्तेमाल करो। दुनिया सबसे बदतरीन जगह है, सबसे बुरी जगह दुनिया है, लेकिन अगर अकल का इस्तेमाल किया जाए, अगर सोचा जाए, तो मैं तो ये कहता हूँ जन्नत में भी दुनिया जैसी बात नहीं है। हाँ, जन्नत में भी दुनिया जैसी बात नहीं है। लोग जन्नत में तुम्हें नहीं सताएंगे, नहीं तोड़ेंगे। लोग सताएंगे, तुम्हारे दिलों को तोड़ेंगे। दुनिया में तुम सब्र कर अल्लाह को दिखाओ। ये जन्नत में कहाँ होगा सब्र करके अल्लाह को दिखाना? बताओ। दुनिया तुम्हें गाफिल करेगी, धोखे में डालेगी, अल्लाह से दूर करेगी। अल्लाह की तरफ इस गफलत से निकल कर आओ, ये गुमराहियों से निकलो, अल्लाह को दिखाओ। मेरे रब, मेरे अल्लाह, मैं दुनिया पर यकीन नहीं करता, तुझ पर यकीन करता हूँ। मेरा बुरा वक्त है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, तेरे सामने हाथ फैलाना है। अल्लाह को राजी कर दिखाओ दुनिया में। जन्नत में मौके नहीं अल्लाह को फिर राजी करने के, फिर तो सजदे की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर अल्लाह को देखकर बंदा कहेगा, या अल्लाह सजदा करना चाहता हूं, तुझे देखकर तो इतना अच्छा है। फिर अल्लाह सजदे की इजाजत नहीं देगा। अल्लाह को मोहब्बत का इजहार यही कर दिखाओ। दुनिया इतनी बेहतर जगह है, इतनी बेहतर जगह है कि हम इसका फायदा उठाना सीखें तो सही। इसमें अल्लाह को राजी कर दिखाओ। इस दुनिया में अपनी आखिरत को खूबसूरत बनाओ, अपने आप को आला बनाओ। यही मौका है। जन्नत में जो सबसे ऊंचे दर्जे होंगे, सबसे कामयाब लोग होंगे, सबसे बड़े कामयाबी पर, वो कौन होंगे? कहाँ मेहनत करी होगी उन्होंने? दुनिया में अपने अखलाकों को दुरुस्त किए होंगे, अल्लाह के रज़ा पर ज़िंदगी गुजारी होगी, लोगों से मोहब्बत की होगी, अच्छे काम किए होंगे, पॉजिटिव काम, पॉजिटिव सोच बनाकर, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोच बनाकर ज़िंदगी बशर की होगी, अच्छे बनकर ज़िंदगी गुजारी होगी। यही लोग होंगे जो कामयाब होंगे। कहाँ पर? दुनिया में मेहनत कर गए होंगे। इस दुनिया का फ़ायदा उठाओ, इसमें अल्लाह को राज़ी कर दिखाओ, अपने आप को कामयाब कर दिखाओ, अपने आप को अज़ाबों से बचा कर दिखाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा कर दिखाओ। उस जन्नत के हकदार बनो, सबसे बड़े हकदार। याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना,
اس دنیا میں بے شمار عالم ہیں، بے شمار عالم. اس دنیا میں عابد بھی بہت ہیں، عبادت کرنے والے، نمازی بہت ہیں، نماز پڑھنے والے. ہاں، امیر بھی بہت ہیں، مال و دولت والے. اللہ کو یاد کرنے والے بھی بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں. دنیا میں ہر کیٹیگری کے بہت انسان ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اونچے درجوں پر جانا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرانا ہے، تو اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اچھے انسان بنو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے بنو. ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، آخرت کی فکر کر رہے ہیں. میرے بھائیو، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، جس حال میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو. ایسے ہی اچھے انسان بننے میں تو کوئی تمہیں محنت نہیں لگے گی، کوئی 10-20 سال کی پڑھائی نہیں کرنی پڑے گی. بس اس دل کو صاف کر لو. آج اللہ سے کہو، یا اللہ، یا اللہ، آج میں نے تیری رضا کے لیے اپنے دل سے سب کو معاف کر دیا. اپنے دل سے سب کو معاف کرو، سب کو معاف کر دو اپنے دل سے. ہاں، اللہ کو راضی کرو، سب کو معاف کرو، اللہ کو راضی کرو. دل میں کسی کا غم نہ رکھو، کسی کا برا نہ چاہو، کسی کو برے میں نہ رہو. دل سے سب کو معاف کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کے محبوب بنو، محبوب بنو. میرے بھائیو، اس عقل کا استعمال کرو گے تو کیا کچھ نہیں کرو گے، کیا کچھ نہیں کرو گے. اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی ہمیں ناکام نہیں کرا سکتا اگر ہم ہی نہ چاہیں.